Hello, dear students. In science, today we will learn lesson number 3, and the name of the lesson is Teeth and Microbes. अब आपने कभी ऐसा ट्राई किया है? चपाती का पीस है वो पूरे का पूरा च्यू किए बिना स्वेलो कर जाना? It is not possible. But for snake, it is possible. They swallow the whole egg. But for us, it is not possible. So, for eating your food, what we need? We need our teeth. Open your mouth and look at your teeth in front of the mirror. How many teeth do you have? Ask your parent when you go to first tooth. It must have been when you were 6 or 7 months old. Teeth, sets of teeth. Tooth is a singular form and teeth is the plural form. Okay. There are 2 sets of teeth during our lifetime. First set of teeth is called milk teeth or temporary teeth, and second set of teeth is called permanent teeth. By the time a child is 3 years old, he or she usually have 20 teeth. जब तक चाइल्ड है वो 3 साल का हो जाता है तब तक 20 teeth उसके आ गए होते हैं. This first set of teeth is made up of milk teeth or they are called temporary teeth, यानी कि वो कुछ सालों के बाद गिर भी जाते हैं, यानी कि वो temporary है. And second set of teeth is permanent teeth. When the child is about 6 years old, the milk teeth begin to fall out. Now, new teeth that are bigger start growing in their place. These are called permanent teeth. By the time the child becomes an adult, he or she has 32 permanent teeth. जब तक बच्चा बड़ा हो जाता है तब तक 32 परमानेंट टीथ आ गए. नाउ परमानेंट टीथ मीन्स वो हमेशा अगर आप उसकी अच्छे से देखभाल करोगे तो आप जब तक लाइफ टाइम आपकी पूरी लाइफ तक वो टीथ रहेंगे. दैट इज कॉल्ड परमानेंट टीथ. नाउ काइंड्स ऑफ टीथ. आपने कभी आपके जो यानी कि आपके जड़बे हैं जो ऊपर के अपर जो एंड लोअर जो मिरर में देखना एक बार, क्या आपके सारे टीथ के शेप और साइज सेम नजर आते हैं? नहीं, उन सब की शेप और साइज अलग अलग होती है क्योंकि उन सब के काम अलग होते हैं. तो एन एडल्ट हैज 4 काइंड्स ऑफ टीथ. विच आर दे? इंसिजर्स यानी कि कटिंग टीथ, कैनाइन्स यानी कि टीयरिंग टीथ, प्रीमोलार्स यानी कि क्रशिंग टीथ एंड मोलार्स यानी कि ग्राइंडिंग टीथ. ओके, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ. फर्स्ट वन इज इंसिजर्स यानी कि कटिंग टीथ. कट करना यानी कि हाँ, व्हेन यू ईट एन एप्पल, so which teeth you are using? You are using your front teeth, that are incisors. They are the 4 teeth at the front of each jaw. ऊपर के जो में और नीचे के जो में जो आगे के 4 दांत होते हैं, they are called incisors. They help to cut and bite food. There are 8 incisors in all. पूरे माउथ में टोटल 8 incisors होते हैं. Okay. Second kind of teeth is canines or tearing teeth. The canines are next to the incisors. आगे के जो 4 दांत है उसके दोनों साइड में एक एक टीथ होते हैं. वो शार्प और पॉइंटेड होते हैं. उसको क्या बोलते हैं? canines. They are used for tearing food like meat. There are 4 canines in all. ऊपर के जो में 2 और नीचे के जो में 2, यानी कि टोटल मुंह में कितने हो गए कैनाइन्स? 4 कैनाइन्स. नेक्स्ट इज प्रीमोलार्स और क्रशिंग टीथ.
The premolars are the two teeth next to each canine. They are flat and wide. They help to crush food. There are 8 premolars in all. कैनाइन्स के बाजू के दोनों साइड दो दो दांत होते हैं जो थोड़े से फ्लैट और वाइड होते हैं. अब देखना पीछे के दांत है वो आपके फ्लैट हो गए. तो काम क्या करते हैं प्रीमोलर्स? टू क्रश योर फूड. तो ऊपर के साइड दोनों साइड दो दो यानी कि ऊपर के साइड 4 और नीचे के जो में 4. तो टोटल कितने प्रीमोलर्स हो गए? 8 प्रीमोलर्स. Now comes molars. Molars means grinding teeth. The molars are the 3 teeth at the back of the mouth. पीछे के साइड दोनों साइड में 3 दांत. उसका क्या नाम है? मोलार्स. नेक्स्ट टू द प्रीमोलार्स. दे आर ब्रॉडर. बहुत ब्रॉड होते हैं, वाइड होते हैं. दे हेल्प टू ग्राइंड फूड. वो फूड को पूरी तरह से ग्राइंड कर देते हैं. There are 12 molars in all. ऊपर के जो में 6 molars और नीचे के जो में 6 molars यानी कि 12 molars. तो टोटल कितने हो गए? 32. 8 incisors plus 4 canines plus 8 premolars and plus 12 molars. So total there are 32 teeth. Now comes structure of a tooth. The part of the tooth that can be seen above the gum is called the crown. Gum मतलब ये जो स्किन वाला पार्ट होता है that is called gum. The gum से ऊपर वाला जितना पोर्शन है that means this much, that is called crown. The outer layer of the crown is made up of substance called enamel. It is the hardest substance in your body. It is difficult to scratch the surface of this layer. पूरे बॉडी में ये जो इनामेल है, इनामेल नाम के सब्सटेंस से बना होता है. ये बहुत पूरी बॉडी में से हार्डेस्ट होता है. उसके ऊपर आप स्क्रैच भी नहीं कर सकते. Beneath the layer enamel is a layer of dentine. इनामेल के नीचे कौन सा लेयर है? डेंटाइन. It is not as hard as enamel. The innermost portion, सबसे अंदर वाला portion of the tooth is called the pulp. The pulp contains blood vessels and nerves. As you can see, blue and red are the blood vessels and nerves. The part of the tooth that is inside the gums, यानी कि जो skin area है उसके अंदर के साइड वाला जो पार्ट है टूथ का, उसको क्या बोलते हैं? root. It holds the tooth firmly in place just like the root of a plant. जैसे प्लांट को उसके रूट्स होते हैं वो अच्छी तरह से सॉइल के अंदर पकड़ के रखते हैं, वैसे आपका जो रूट वाला पार्ट है वो आपके टूथ को गम के अंदर फिक्स करके रखता है. ओके. नाउ कम्स द डैमेज टू योर टूथ. अब आप परमानेंट टीथ है, आपके परमानेंट टीथ आ गए. फिर परमानेंट टीथ आने के बाद अगर आप उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखोगे तो क्या होगा? वो धीरे धीरे डीके यानी कि सड़ने लगेगी और गिरने लगेगी. फिर दांत के बिना तो खाना मुश्किल है. तो व्हाट यू हैव टू डू? वंस यू गॉट योर परमानेंट टीथ यू शुड टेक केयर ऑफ योर टीथ, है ना. तो सड़ते कैसे है वो? तो व्हेन यू ईट स्मॉल बाइट ऑफ फूड गेट स्टक बिटवीन योर टीथ. दोनों दांतों के बीच में जो जगह होती है उसके अंदर क्या होता है? स्मॉल पीसेस खाने के फंस जाते हैं. इफ दिस बिट्स ऑफ फूड आर नॉट रिमूव्ड, स्मॉल लिविंग थिंग्स कॉल्ड जर्म्स स्टार्ट ग्रोइंग ऑन देम. अगर वो बिट ऑफ फूड नहीं रिमूव किया थोड़े टाइम के अंदर तो जो खाना फंस गया है उसके अंदर स्मॉल लिविंग थिंग्स यानी कि जर्म्स स्टार्ट ग्रो होना हो जाते हैं. जर्म्स प्रोड्यूस अ सब्सटेंस कॉल्ड एसिड्स विच हार्म द इनामेल. जो इनामेल है सबसे हार्ड वाला पोर्शन, उसको हम नहीं कुछ बिगाड़ सकते बट जर्म्स बिगाड़ देते हैं. जर्म्स क्या करते हैं? वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण इनामेल को हार्म पहुंचता है. स्मॉल होल्स कॉल्ड कैविटीज देन फॉर्म ऑन द टीथ.
कैविटीज यानी कि छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कैविटीज. As germs continue to attack the teeth, the cavities become bigger and deeper. जैसे जैसे वो germs कंटिन्यू करेंगे टीथ को अटैक करना, तो वो कैविटीज बढ़ती जाएगी और आपके दांतों के अंदर तक जाने लगेगी. If cavity reaches the pulp, the tooth starts hurting. ये कैविटीज है, होल्स इतने डीप में जाएंगे, जब तक वो पल्प में पहुंचेंगे तब आपके दांत को हर्ट होना यानी कि पेन होना स्टार्ट हो जाएगा. सो वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर टीथ. नाउ कम्स टेकिंग केयर ऑफ योर टीथ. वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील. हर एक खाना खाने के बाद अच्छी तरह से मुंह को साफ करना चाहिए. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए. कैसे ब्रश करना चाहिए? क्यों ब्रश करना चाहिए? पहले तो ताकि जो आपके दांतों के बीच में खाना फंस गया है वो निकल जाए. अब कैसे ब्रश करना चाहिए? तो पहले तो एटलीस्ट 2 मिनट तक ब्रश करना चाहिए. Move your brush up and down to brush the front teeth. आगे के दांत को ब्रश करने के लिए ब्रश कैसे मूव करना चाहिए? अप एंड डाउन. एंड मूव इट इन अ सर्कल while brushing your back teeth. अंदर के पीछे के दांत को ब्रश करने के लिए उसको हमारे ब्रश को सर्कल में ब्रश करना है. थर्ड वन इज विजिट टू डेंटिस्ट पीरियोडिकली. टाइम से टाइम हमें डेंटिस्ट को हमारे दांत के चेकअप के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके दांत में कैविटीज़ होने लगती है तो आगे ना बढ़े कैविटीज़, तो उसको डॉक्टर ट्रीट कर पाएंगे. ओके. नेक्स्ट इज अवॉइड ईटिंग स्टिकी चॉकलेट्स एंड स्वीट्स. स्टिकी चॉकलेट्स और स्वीट खाना अवॉइड करना चाहिए. ओके. क्योंकि स्टिकी चॉकलेट्स और स्वीट्स क्या होती है, वो आपके माउथ में टीथ में फंस जाती है. Avoid fizzy drinks because they have acid in them. They are not good for your teeth. Fizzy drinks, cold drinks आते हैं, ये सारे अवॉइड करनी चाहिए, वो हमारे दांतों के लिए ठीक नहीं है. Drink plenty of milk and eat eggs and green leafy vegetables. They give you vitamin A and calcium. दूध पीना चाहिए if you are eating eggs एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. वो क्या देते हैं? विटामिन ए प्रोवाइड करते हैं और कैल्शियम देते हैं. आपने चैप्टर 1 में पढ़ा, कैल्शियम इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ. और वो कहाँ से मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और मिल्क में से. दे आर रिच इन कैल्शियम. ओके. नाउ कम्स माइक्रोब्स. व्हाट आर माइक्रोब्स? तो मिलियंस ऑफ टाइनी थिंग्स होती है, लिविंग थिंग्स होती है, वो हर जगह होती है, चाहे वो सॉइल में हो, वाटर में हो, इवन इनसाइड आवर बॉडी. सो देर आर मिलियंस ऑफ टाइनी लिविंग थिंग्स प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड यू, in soil, in water, air, and even inside your body. But can you see them? No, we cannot see them by our open eyes. We can see them only through a microscope. माइक्रोस्कोप आता है, तो माइक्रोब्स देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है. वो हम लोग हमारे आइस से नहीं देख सकते. तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? ऐसी मशीन होती है, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप. ओके. So these tiny living things are called microbes. Some microbes are useful to us, whereas some are harmful to us. Now what are germs? Disease causing microbes are called germs. जिन माइक्रोब से हमें डिजीज होती है, बीमारियां होती है, उसको क्या बोलते हैं? जर्म्स. तो कुछ माइक्रोब्स हमें हेल्पफुल भी होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं. ओके. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स. कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस. Now first one is bacteria. Harmful bacteria cause disease like typhoid, food poisoning and tooth decay.
जो हमारे बैक्टीरिया वो हार्मफुल है वो ऐसी डिसीज भी हमें दे सकती है। और यूजफुल बैक्टीरिया कहाँ यूज़ हो गए? दे हेल्प इन डीके ऑफ प्लांट एंड एनिमल मैटर। जो प्लांट और एनिमल मैटर अर्थ के सॉइल के अंदर बच गया है उसको डीके करने के लिए, ताकि वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाए। और डाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल की बॉडी के अंदर डाइजेस्ट का काम भी करते हैं बैक्टीरिया। एंड टू मेक चीज़, विनेगर एंड योगर्ट, ऐसी चीज़ें भी बनाने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। ये सारे बैक्टीरिया के शेप्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। और ये ऐसा मोस्ट कॉमन लिविंग थिंग है अर्थ के ऊपर, और उसका सिंगुलर फॉर्म क्या है? बैक्टीरियम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। दे लिव इन वेट प्लेसेस, वेट प्लेसेस में रहते हैं, इन बॉडीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स के बॉडीज में भी रहते हैं। सम ऑफ देम कॉज डिजीज लाइक मलेरिया, मलेरिया नाम की डिजीज भी वो प्रोटोजोआ नाम के माइक्रोब्स देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वायरसेस। वायरसेस है वो चारों माइक्रोब्स में से सबसे स्मॉलेस्ट है। वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रोब्स। दे कॉज डिजीज लाइक फ्लू, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मिसेल्स, मम्प्स, पोलियो। एंड अभी रिसेंटली आपको मालूम होगा कौन सा वायरस चल रहा है? कोरोना वायरस। ओके, सो टेक केयर। नाउ नेक्स्ट इज फंगी। उसका सिंगुलर फॉर्म है फंगस। फंगी कहाँ ग्रो होती है? फंगी ग्रो ऑन डेड एंड रोटिंग मटीरियल। दे कॉज स्किन प्रॉब्लम्स सच एज रिंग वॉर्म्स एंड डैंड्रफ। स्किन के प्रॉब्लम होते हैं फंगी से। ओके, सम आर यूजफुल। यीस्ट नाम का जो फंगस है वो ब्रेड बनाने में काम करता है। अगर यीस्ट डालोगे ब्रेड में तो ब्रेड एकदम सॉफ्ट होगी। Okay, so this was all about microbes. So there are 4 main kinds of microbes we have seen, that is bacteria, protozoa, viruses and fungi. Okay, thank you.